this morning. कहीं सुबह के समय प्रभु के घर पर रहने की वजह से आप आशीर्वादित हो। Hallelujah. Let's get to the word of the Lord. आइए परमेश्वर के वचनों में हम जाएं। If you have your Bibles, turn with me to the Gospel according to Matthew. यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार में आइए। If there's anyone who does not own a Bible, I will suggest you to buy one, please. यदि आप किसी ने जो अपना खुद का बाइबल नहीं लिया तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप बाइबल खरीद लें। It does not cost too much, और ज़्यादा उसका दाम भी नहीं लगता। and it is something that you will really want to have. और ऐसी कुछ बात है जो आपके पास जरूर होनी चाहिए। Matthew chapter 5. मत्ती इसका 5वां अध्याय। The Gospel according to Matthew in chapter 5. मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय। This is a very familiar chapter. और ये बहुत ही प्रचलित नामचीन ऐसा अध्याय है। This is the chapter where Jesus delivers the sermon on the mount. और ये ऐसा संदेश है अध्याय है जहाँ पर यीशु पर्वती संदेश देता है। So I just want to read verse 1, 2 and 3 today. और इसलिए आज मैं पहला, दूसरा और तीसरा वचन पढ़ना चाहूँगा। So if you have your Bibles open to Matthew chapter 5 verses 1, 2 and 3. और यदि आपके पास बाइबल है तो मत्ती इसके 5वां अध्याय पहला, दूसरा और तीसरे वचन की ओर आओ। Then can we all just read this together right now? क्या साथ में मिलकर इस वचन को हम सभी जन पढ़ेंगे? Everyone has it open? हर एक जन ने खोला, उस वचन को निकाला। Let's read it together. आइए साथ में मिलकर वचन पढ़ें। Seeing the crowds, he went up on the mountain. And when he was seated, his disciples came to him. Then he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. This chapter of Matthew chapter 5, और ये जो अध्याय है मत्ती इसका 5वां अध्याय, the first half of this chapter, और इस अध्याय का जो पहला आधा जो भाग है, I will title it as the King's Speech. और मैं इसे राजा का संदेश ऐसा मैं इसे शीर्षक दूंगा। This is probably the longest sermon that Jesus has given, which is recorded in the Bible. और यीशु ने जो संदेश दिया उसमें से सबसे बड़ा या लंबा समय का ये संदेश है, ऐसा बाइबल में दर्ज किया गया। Nowhere else will you find Jesus speaking so much in one stretch to people gathered around him. और बाइबल में दूसरी कहीं पर भी आप नहीं पाओगे कि यीशु मसीह एक ही बार में इतनी लंबे समय तक लोगों को संदेश देता He है। has had long conversations, but that was with his disciples. अपने बहुत ही लंबी वार्तालाप उसकी रहे, लेकिन अपने चेलों के साथ होती। But with the common crowd, लेकिन सामान्य लोगों भीड़ के बीच this was the first time and probably the only time, as recorded in the Bible, that Jesus is delivering such a long speech. और ये पहली बार और ये अंतिम, यानी एक ही बार ऐसा बाइबल में जैसा दर्ज है कि बहुत ही लंबा संदेश यीशु ने वहां पर दिया। Now let me give you a background which is found in chapter 4. अब चौथे अध्याय में जो इसकी पार्श्वभूमि है उसके बारे में थोड़ा मैं बताना That is चाहूंगा। the chapter 4 starts with this very famous or well-known incidents of Jesus going into the wilderness, fasting for 40 days, coming out and being tempted by the devil. और चौथा अध्याय बहुत ही प्रचलित है इस बात को बताने में कि यीशु मसीह जो है वो जंगल में जाता है, 40 दिन उपवास में वो होता है और वहां से लौट कर आता है। He's tempted by the devil. और वो शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा होती है। With the word he overcomes the temptation. वचन के द्वारा उस परीक्षा पर वो जय पाता है। And then the chapter continues. और उसके बाद अध्याय आगे ऐसा बढ़ता है। Jesus goes choosing his disciples. यीशु जाकर अपने चेलों को चुनता है। Now chapter 4, towards the end, it says like this. चौथे अध्याय के अंतिम वचनों में इस प्रकार से लिखा I just है। want to read that chapter 4 towards the end. और चौथा अध्याय का अंतिम वचन Verse 23 onwards. और 23 वचन से आगे। And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the good news of the kingdom. और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता। And healing every disease and every weakness and infirmity among the people. और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। So the report of him spread throughout all Syria, and they brought to him all that were sick. और सारी सीरिया देश और उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े होते हैं, those affected with different diseases and torments, those under the power of demons and epileptics and paralyzed people, and he healed them all. जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। And great crowds joined him and accompanied him और बहुत ही बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली from all over the region. और सारे क्षेत्र में से। Now understand this. अब इस बात को समझ लें। It was the start of
Jesus' ministry. यीशु की सेवकाई की ये शुरुआत थी। And I'm telling you, he did not have a small start. और मैं आपको बताऊं कि उसकी शुरुआत कोई छोटी मोटी नहीं He थी did not start from a small church. और छोटी सी कलीसिया से उसने शुरुआत नहीं की Small group then became big. और छोटा सा झुंड बाद में बढ़ता चला गया। No, he just started with a bang. नहीं, लेकिन बहुत ही बड़े धमाके और बहुत ही बड़े स्वरूप से उसने शुरुआत की। Hallelujah. Hallelujah. It's found in that very same chapter और उसी अध्याय में पाया जाता है that Jesus gathered a few disciples, यीशु ने कुछ चेलों को इकट्ठा किया went from city to city, और शहर से शहर की ओर जाता रहा went preaching and teaching. और जो प्रचार करता गया, सिखाता गया। They brought the sick to him. लोगों ने बीमारों को यीशु के He पास लाया started healing the sick. और यीशु सारे बीमारों को चंगा करता The हुआ word गया। spread. और ये सारी बातें जो है फैल गई More sick people came. और भी ज्यादा बीमार जो दूसरे लोग आए He healed them. और यीशु ने उन्हें चंगा The किया word spread. और भी ये जो घटना, ये जो संदेश और भी फैला More people came. और भी ज्यादा लोग आए So Jesus' ministry was just increasing in thousands by the day. और यीशु की सेवकाएं जो है दिन भर में हजारों की और जो संख्या में बढ़ती जा रही The थी crowd was not a small crowd. और जो भीड़ थी कोई छोटी मोटी भीड़ The नहीं थी crowds were just increasing every day. और हर दिन वो भीड़ जो है उसमें बहुत ही बढ़ोतरी हो रही And थी। now it moves to chapter 5. और 5वें अध्याय में अब आते हैं And this is now how chapter 5 starts. अब 5वां अध्याय इस प्रकार से शुरुआत होता It है said, seeing the crowd, और ऐसा लिखा है कि उस बड़ी भीड़ को देखते हुए Jesus went up on the mountain. यीशु उस पहाड़ पर चढ़ गया Seeing the crowd, he went on the और mountain. उस बड़ी भीड़ को देखकर यीशु पहाड़ पर चढ़ गया And when he had sat down, it says, और जब वो बैठ गया ऐसा लिखा है his disciples came to him. उसके चेले उसके पास आए। Now listen to this. Why did Jesus go up on the mountain? अब इस बात को जरा सुनिए कि यीशु मसीह को उस पहाड़ पर जाने की क्या जरूरत पड़ी। There were a lot of people coming to Jesus. बहुत सारे लोग थे जो यीशु के पास आ रहे थे And Jesus looks at the crowd और यीशु उस भीड़ की ओर देखता and है he starts climbing up a mountain. और वो पर्वत की ऊपर जाने लगा As long as he was walking on the earth, और जब तक वो जमीन पर चलता रहा people just followed him. लोग बस उसके पीछे चलते रहे। But the moment he started climbing the mountain, लेकिन जिस क्षण वो उस पहाड़ पर चढ़ने लगा something starts to happen. और कुछ तो वहां पर होने लगा। What happens when you start climbing the mountain? जब आप पर्वत पर चढ़ने लगते तो क्या होता है? Only the really interested follow you. Only the और really केवल जो वास्तविक जो आप में दिलचस्पी रखते हैं वे ही लोग आपका अनुकरण करते हैं या पीछे चलते हैं। because mountain climbing is not an easy work. क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना ये कोई आसान काम नहीं है It's physically draining. और भौतिक तौर से ये जो है कमजोर यानी ऐसा करने वाली It's बात है mentally and emotionally draining. और जो है दिमागी तौर पर भावनात्मक तौर पर जो है इस प्रकार से प्रशिक्षित A होने lot of लगा। people were seeing the miracles that Jesus did. बहुत सारे लोगों ने जो चमत्कार यीशु ने के उन चमत्कारों को देख And रहे they थे were just coming to him because of the miracles. और उन चमत्कारों की वजह से लोग यीशु के पास आ रहे थे। But now Jesus wanted to separate the group. He wanted to take away just a crowd. He wanted to separate the group from the crowd. लेकिन वो इस समय उस बड़ी भीड़ में से एक झुंड को अलग करना चाह रहा This था is not just the first time or the last time Jesus does this. और ये पहली बार या सबसे अंतिम बार यीशु ने ऐसा किया ऐसा नहीं है। When we were speaking about the Lord's table, I have shared this with you जब also. परमेश्वर की मेज के बारे में मैंने बताया तो उस दिन मैंने इस बात को आपको He बताया takes था only the 12. और केवल 12 को यीशु ने लिया। The people who were with him for no reason. ऐसे लोग जो बिना किसी कारण के यीशु के साथ थे All through his ministry for 3.5 years, और उसकी सारी सेवकाएं के दौरान जो 3.5 साल भर की रही Jesus was always separating the group from the crowd. यीशु हमेशा बड़ी भीड़ में से एक झुंड को अलग करता And रहा when he had the group with him, और जब वो झुंड उसके साथ था he began to teach them. तो वो उस झुंड को सिखाने He लगा began to minister to them. और उनकी सेवकाएं उनके साथ कार्य करने लगा Even now, or even in these days, this is God's style of working. और अभी भी या इन दिनों में परमेश्वर की सेवकाएं या कार्य करने का तरीका यही है। Hallelujah. Hallelujah. Christianity is the largest religion in the world. मसीहत जो है पूरे विश्व भर में सबसे बड़ा धर्म है। Hallelujah. 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 We are the largest number of people on the earth. और पृथ्वी पर में सबसे बड़ी संख्या जो है वो मसीह की है। But that is a crowd. लेकिन वो तो बड़ी भीड़ है। But in this crowd, लेकिन इस बड़ी भीड़ में God is constantly looking to find the group to whom He wants to minister. परमेश्वर लगातार ऐसे झुंड की ओर ध्यान दे रहा है जिसके और वो बात कर सकता So है। He climbs up the mountain. और इसलिए वो पहाड़ पर चढ़ा
Everyone tries. और सारे लोगों ने प्रयत्न Some किया। people say, oh, forget it, we'll come tomorrow. और कुछ लोगों ने कहा अरे भूल जाओ, हम कल आ जाएंगे। Or some people say, oh, leave it, next month anyways he's coming to our city, so we'll meet him there. कुछ लोगों ने कहा जाने दो, कोई बात नहीं, अगले महीने तो हमारे नगर में ही आ रहा है, वहां पर हम मिल लेंगे। Some people said, oh, forget it, we'll buy his CDs and we'll listen to it. और कुछ लोगों ने बोला जाने दो, हम उसकी सीडी खरीदेंगे और देखेंगे। Some people said, no, she's going, she'll make notes, so I'll take those notes from her. और कुछ लोगों ने कहा वो जा रही, वो सब लिख लेगी और मैं बाद में उसने जो लिखा है मैं देख लूंगा। So that group began, that crowd began to shrink. और इसलिए वो जो बड़ी भीड़ थी वो छोटी होने लगी। And Jesus just continued climbing. और यीशु लगातार उस पहाड़ पर्वत पर चढ़ता People गया। began to fall back. लोग जो है पीछे हटने लगे। The people who really were not connected with him for who he is began to fall back. ऐसे लोग जो यीशु कौन है उसके वजह से उसके साथ न जुड़ नहीं पा रहे थे, ऐसे लोग पीछे हटते गए। Spiritual life is the same. आत्मिक जीवन ऐसा ही है। Many believers fall back because they are not really connected with who he is. कई विश्वासी जो है वो पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो जो है उसके प्रति वे लोग उस बात पे जुड़ते They नहीं are हैं। only connected with him for what he is. और वो क्या है इसी के प्रति वे लोग उसके साथ जुड़े हुए The होते Son हैं। of God can do some miracles. अरे वो परमेश्वर का पुत्र है, कुछ चमत्कारों को कर Can do सकता है, something in my life. मेरे जीवन में वो कुछ कर सकता Can है make these changes. और ये सारी बदलावटों को बुला सकता Can है bring this healing. और ये चंगाई को बुला सकता Can है, give me that promotion. मुझे वो बढ़ती वो दे सकता है, Can give me that future. मुझे ऐसा भविष्य वो दे सकता है। These kind of people don't stay with him. ऐसे प्रकार के लोग परमेश्वर के साथ नहीं रहते And these kind of people are also found in the church. और ऐसे प्रकार के लोग कलीसिया में भी पाए जाते हैं। In my small years of ministry, I have seen many people like this. और मेरी सेवकाई की थोड़े से वर्षों में कई लोगों को ऐसे मैंने देखा। My dad in his 45 years would have seen many people like मेरे this. पिताजी अपने 45 सालों की सेवकाई में बहुत सारे ऐसे लोगों को उन्होंने देखा होगा। God is always interested in separating the group from the crowd. और इसलिए परमेश्वर हमेशा बड़ी भीड़ में से छोटे से झुंड को अलग करने में दिलचस्पी रखता है। After Jesus was satisfied यीशु मसीह तृप्त होने के संतुष्ट that होने के now बाद the group is separated, संतुष्ट होने के बाद कि अब ये झुंड जो है वो आ गया the है। Bible says he sat down. बाइबल बताती है कि वो बैठ गया। Hallelujah. हालेलुया। When he has found the group, और जब उसने उस झुंड को पाया he stays with the group. वो झुंड के साथ वो रहा। Hallelujah. Hallelujah. Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? Hallelujah. हालेलुया। When we are connected with God for who he is, जब परमेश्वर कौन है ऐसा जानकर जब हम उसके साथ जुड़े होते my हैं, savior, मेरा उद्धारक, my lover, मेरा प्रेमी, the one who gave his life for me, और जिसने मेरे लिए अपनी जान दे the one दी, who controls my life, और ऐसा जो मेरे जीवन पर नियंत्रण the रखता one who है, loves me like no one other, ऐसा जो मुझसे इतना प्रेम करता है जो कोई भी मुझसे the इतना one प्रेम who नहीं करता, deserves me as just as I am. और ऐसा जो जैसा भी मैं हूँ मुझे वो चाहता है। When we are connected him in that way, जैसे जब इस तरीके से हम उसके साथ जुड़े हुए होते the हैं, Bible says he sits down. बाइबल बतलाती है कि वो बैठ गया। Hallelujah. Hallelujah. He takes his place in your life. वो आपके जीवन में अपना स्थान ले लेता है। Many followed him, और कई लोगों ने तो उसका अनुकरण किया, पीछे चले, but just a few had him. लेकिन कुछ ही लोगों ने उसको पाया। Hallelujah. हालेलुया। Many followed him, और कई लोग यीशु के पीछे चले, but just a few had him. लेकिन कुछ ही लोगों ने उसे पाया। How many of us here have Jesus with us today? हम में से आज कितने लोगों को यहाँ पर यीशु हमारे साथ No, है? no, no, no. I know I'm baptized pastor. I go to church. I take communion. That's not having अरे नहीं Jesus. नहीं, ऐसा नहीं पास्टर जी, मैंने बपतिस्मा लिया और मैं कलीसिया में जाता हूँ, प्रभुवचन लेता हूँ, ये बात नहीं है। No, having Jesus is a different realm of relationship. यीशु को पाना या यीशु रहना ये अलग ही प्रकार का स्तर है। It's where Jesus sits with you. ये ऐसा है जहाँ पर यीशु मसीह आपके साथ बैठता है। Hallelujah. हालेलुया। Come on, are you getting what I'm saying in church? क्या मैं जो बता रहा हूँ कलीसिया आपको समझ में आ रहा है? It's Jesus living with you. यीशु आपके साथ रहना You ये है। get up in the morning and you see his face because he is there in your house. आप सुबह के समय जाग उठते हो और आप उसके चेहरे को देखते हो क्योंकि यीशु आपके घर में होता When you है। get up in the morning, you see the face of your father, mother, your wife, your children because they are there in the house. और आप सुबह का समय जाग उठते हो और अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चे, अपने माँ पिताजी के चेहरे को देखते हो क्योंकि वो वहाँ पर हैं। You know because they live there with you. आप जानते हो क्योंकि वो वहाँ पर आपके साथ रहते It's a हैं daily experience. और ये रोजमर्रा का अनुभव है। This is what I'm talking about. Jesus sitting. और यही बात मैं बता रहा हूँ कि यीशु वहाँ पर बैठना।
Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. When you have Jesus, और जब यीशु आपके पास होता you है see him in the morning, तो आप सुबह के समय उसे देखते you हैं, see him in the afternoon, आप दोपहर के समय उसे पाते you see हो, him in the evening, आप शाम के समय उसे पाते हो, या even in the नहीं? night you see him. रात के समय में भी आप उसे देखते In the middle of your sleep, you get up to go drink some water, even that time you see हैं, him. आप रात के समय अचानक उठ बैठते हो और पानी पीने जाते हो, तब भी आप उसे देखते Come on, हो, because he is there, he is there. You have him in the house. क्योंकि वो वहां पर है, वो परमेश्वर यीशु आपके घर में वहां पर है, And there now the disciples come to him. और वहां पर चेले अब उसके पास आते हैं। Now understand, he has separated the group from the crowd. अब इस बात को आप जान लीजिए कि बड़ी भीड़ में से एक झुंड को उसने अलग किया है, Once he had the group, और एक बार जब एक झुंड उसके पास आ जाता he है, sat down in that place. वो वहां पर उस स्थान पे बैठ The जाता है, disciples came to him. और चेले उसके पास आए। And now Jesus begins his speech. अब यीशु अपने संदेश की शुरुआत वो करता Now I है। just want to, let's turn to verse 3 here. आइए तीसरे वचन में यहाँ पर हम आए, Matthew chapter 5 and verse 3. मत्ती का 5वां अध्याय 3रा वचन। Let's look at what the word of God says. परमेश्वर का वचन क्या कहता है जरा देखिए। Verse 2 it says, and then he opened his mouth and taught them. और दूसरा वचन कहता है और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। You know, why did it have to say he opened his mouth? क्यों ऐसा लिखना है कि वह अपना मुंह खोलकर उन्हें बताने लगा? Because God speaks. क्योंकि परमेश्वर बोलता है। हालेलुया, Hallelujah. God is not about emotion. परमेश्वर भावनात्मक का स्वरूप का केवल नहीं है। What did you do in church, brother, today? आज भाई कलीसिया में आपने क्या किया? Or what was your experience in church today? या तो आज कलीसिया में आपका अनुभव क्या रहा? I felt the presence of God. मुझे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हुई पास्टर जी। Come on, brother, God is not about feeling. अरे देखो परमेश्वर केवल महसूस होने वाली बात नहीं है, He is a God who opens his mouth and also speaks. लेकिन वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने मुंह को खोलकर बोलता भी है। So what was your experience in church, brother, today? इसलिए भाई आज आपकी कलीसिया में आपका वो अनुभव क्या रहा? Come on, God spoke to me. परमेश्वर ने मुझसे बातें की। Hallelujah. It's no more about I felt the presence of और God. मुझे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हुए, ऐसे कोई बात नहीं I है। felt the anointing. मुझे अभिषेक महसूस हुआ, I felt the presence. मुझे उपस्थिति महसूस हुई। Jesus opened his mouth. नहीं, यीशु ने अपना मुंह खोला। Even today, God opens his mouth and speaks. आज भी परमेश्वर अपना मुंह खोलकर बोलता है, Speaks to you and me. वो आपसे और मुझसे बातें करता You है। can hear his voice. आप उसकी वाणी को सुन सकते हो, You can hear his voice. आप उसकी आवाज को सुन सकते हो। Verse 3. तीसरा वचन, I'm going to refer to the Amplified Bible here. एम्प्लीफाइड बाइबल में जो लिखा है उसको मैं बताना Because चाहूंगा, it describes this verse in a very beautiful way. क्योंकि बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर वचन का बखान किया गया है। It says, blessed are the poor in spirit. और ऐसा लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। Now what is the meaning of the word blessed? और धन्य इस शब्द का मतलब क्या है? Now the Amplified Bible has given a very long definition to this. और एम्प्लीफाइड बाइबल में इसका बखान बहुत ही बड़ा बताया गया है। But when you read this, you really appreciate the meaning of the word blessed. लेकिन जब आप इसे पढ़ते हैं तो वास्तविकता में धन्य बात की आप जो है बड़ाई The करते हैं। basic meaning of blessed is happy. और धन्य का बुनियादी जो बात है वो खुशी, आनंद। Now the next level of meaning of the word blessed और धन्य का अगला स्तर का जो मतलब है is to be envied. Means you are blessed so much that I envy you. और अब इतना आशीर्वाद होते हैं, इतना आशीर्वादित होते हैं कि आपको सराहते हैं। When you say that you are blessed, जब आप कहते हैं कि आप आशीर्वादित हो, when I say that I am blessed, और मैं जब कहता हूँ कि मैं आशीर्वादित हूँ, when I say that he is blessed, और जब मैं कहता हूँ कि ये आशीर्वादित है, it is to such an extent he is happy that I begin to envy him. और इतना हद तक वो खुश और आनंद है कि मैं उनको देखता हूँ या सराहता हूँ। Now the third level, अब तीसरा स्तर, blessed means to be spiritually prosperous, और धन्य का मतलब है आत्मिक बढ़ती और उन्नति पाया with हुआ, life, joy and satisfaction, और जीवन और आनंद और तृप्ति और भरपूरी से, in God's favor and salvation, और परमेश्वर की सहाय और उद्धार की परिपूर्णता, regardless of the outward conditions. और बाहरी स्वरूप के बगैर किसी शर्त के। Now I'll break this down very slowly to you. और इसे धीमे करके मैं आपको बताना चाहूंगा। Now understand what is the meaning of being blessed. देखिए, आशीर्वादित होने का मतलब आप जान ले। Basic meaning is I'm happy. बुनियादी जो मतलब सामान्य तौर का मतलब यह है कि मैं खुश हूँ। Second meaning is this, दूसरा मतलब यह है that I have something which you can look and you can be jealous about. कि मेरे पास आप देखकर जो है आप जलन रख सकते हैं। The third meaning is this, और तीसरी बात यह to है be spiritually prosperous. और आत्मिक स्वरूप से उन्नति पाना। To be spiritually prosperous to such an extent और आत्मिक स्वरूप से इतने हद तक बढ़ना that the outward occurrence does not matter. कि बाहरी स्वरूप का दिखाई देना उसमें
में कोई मतलब कोई मायना नहीं रखता। Now, let me give you an example for you to understand. और आपको समझने के लिए मैं आपको उदाहरण बताना चाहूंगा। Being blessed in your life आपके जीवन में आशीर्वादित होना is not measured by what you have outwardly only. केवल बाहरी स्वरूप से आपके पास क्या है उसी के साथ हिसाब नहीं लगाया That's जाता। only an indicator. वो तो केवल एक चिन्ह है। But the real meaning of the word blessed लेकिन आशीर्वादित या होने का सही मतलब ये है starts from the inside. अंदरूनी स्वरूप से उसकी शुरुआत होती है। Prosperity doesn't begin in your bank account. उन्नति की शुरुआत आपके बैंक अकाउंट से शुरुआत नहीं होती। It begins in your spirit. आपकी आत्मा से उन्नति की शुरुआत होती And है। as you begin to prosper in your spirit, और जैसे आपकी आत्मा में आप बढ़ते चले जाते it हो overflows into your material life. और आप बढ़कर जो है आपके भौतिक साधनों में उसका जो है प्रकट होता है। Come on, this is a little technical that I'm talking to you about. ये जरा तकनीकी तौर से मैं आपसे बात कर रहा But just हूँ, try to understand लेकिन this. इस बात को समझने का प्रयत्न करें। Being happy, और खुश रहना being blessed और आशीर्वादित रहना is not a measure of what's on the outside. बाहरी स्वरूप से ये है उसी का केवल हिसाब नहीं लगाया जाता, Now, उसके हिसाब से नहीं। I'll give you the example of a pregnant woman. और मैं गर्भवती स्त्री का उदाहरण बताना When चाहूंगा। you see a woman, the stomach beginning to start increasing, जब एक स्त्री को आप देखते हो कि उसका पेट बड़ा है, you know there is a child there. तो आप जानते हो कि एक शिशु उसमें बच्चा Now you उसमें। don't see the child outside. अब उस बच्चे को बाहरी स्वरूप से नहीं देख रहे Does हो। not mean the child is not there. इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा नहीं है। It starts inside. और अंदरूनी स्वरूप से शुरुआत हुई है It's formed inside. और अंदरूनी स्वरूप से उसका आकार हुआ It begins to grow on the और inside. अंदरूनी स्वरूप से वो बढ़ने लगता है। When the full time has come, और परिपूर्णता का समय जब आता है, what's on the inside now is manifested on the outside. अब अंदर जो है वो बाहर प्रकट होता है। Hallelujah. हालेलुया। This is how blessing is in our life. और हमारे जीवन में आशीर्वाद भी ऐसा ही है। If a mother cannot feel the child kicking inside her stomach, I'm telling you, she is definitely not going to see the child outside. और यदि एक माँ अपने बच्चे को अंदर से वो लात मारता हुआ या हिलता डुलता नहीं महसूस कर रही है, तो मैं आपको बताऊं कि भौतिक स्वरूप से या बाहरी स्वरूप से उस शिशु का लुत्फ नहीं उठा पाएगी। In other words, I'll say, दूसरे शब्दों में बताऊंगा, if there is no child inside, यदि अंदर कोई शिशु नहीं है, there is going to be no child outside. तो बाहर भी वो शिशु या बच्चा नहीं रहने वाला। Hallelujah. हालेलुया। Whatever blessing you and I are expecting in our life, जो भी कुछ आशीर्वाद आप और मैं हमारे जीवन में हम अपेक्षा रख रहे हैं, you need to first feel it on the inside. आपको उसको पहले अंदरूनी स्वरूप से महसूस करना होगा। Hallelujah. Because only what's on the inside, और केवल जो अंदरूनी स्वरूप से है it's going to grow, वो बढ़ने it's वाला going है, to increase, वो और भी बढ़ेगा and it's going to overflow on the outside. और वो बाहरी स्वरूप से भरकर उमड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। You want peace in your family? आपके परिवार में आपको शांति चाहिए, First get peace in your heart. पहले आपके हृदय में शांति पा लें, Then that peace will grow and it will overflow and it will flow into your और family. उसके बाद वो शांति बढ़ेगी और वो जो भरकर उमड़कर आपके परिवार में शांति आएगी। Hallelujah. हालेलुया। Every blessing on the outside finds its source on the inside. बाहरी स्वरूप का जो आशीर्वाद होता है उसका जो उगम होता है वो अंदरूनी स्वरूप से Now होता है। Jesus starts like this. He says, blessed, और यीशु इस प्रकार से शुरुआत करता है, वो कहता है धन्य है blessed are the poor in spirit. और धन्य है वे जो मन के दीन हैं। What is the meaning of being poor in spirit? और आत्मा में दीन इसका मतलब क्या है? Now it does, that there have been a lot of explanations for this. और बहुत सारे बखान या प्रकटीकरण इसके प्रति है। Who are the people who are poor in spirit? आत्मा में ऐसे कौन से लोग हैं जो आत्मा में दीन होते हैं? Remember whom Jesus is speaking this to. याद रखिए, इस बात को स्मरण करें कि यीशु किन लोगों से ये बात कर रहा The है? people who were willing to climb up a mountain to be with Jesus. ऐसे लोग जो यीशु के साथ रहने के लिए उस पर्वत पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। What will make you to climb a mountain? कौन सी बात क्या होने पर आप पहाड़ चढ़ोगे? An emptiness in your heart, आपके दिल में जब एक खालीपन होगा, or a hunger in your heart, या तो आपके हृदय में एक भूख होगी, or a passion in your heart, या तो आपके हृदय में एक तड़प, एक जुनून होगा, an unfulfilled desire in your heart, आपके हृदय में जो पूरी नहीं हुई ऐसी अपेक्षा चाहत होगी, will force you to climb the mountain. और ऐसी बात ही आपको उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक दबाव डालेगी। Jesus looks at these people who are there यीशु ऐसे लोग जो वहां पर हैं उन लोगों को देखता and says, blessed are the poor in spirit. और वो कहता है धन्य है वे जो मन के दीन हैं। He looks at you and me today वो आज आपकी और मेरी ओर देखता and he है says the same thing. और वही बात वो कह रहा है। Blessed are the poor in spirit. और आत्मा
आत्मा में जो दीन है वे धन्य है। What does it mean to me to be poor in spirit? आत्मा में दीन होने का मुझ पे क्या मतलब मायना निकलता It है? means that in my spirit I am unsatisfied at all times. इसका मतलब है कि मेरे मन में हमेशा मैं जो है तृप्त नहीं रहता। There is more that I want of God. और भी है जो मुझे परमेश्वर चाहिए। What I have is not sufficient. मेरे पास जो है वो काफी नहीं है। I need more, Lord. मुझे और भी चाहिए The प्रभु। knowledge I have of the Bible is not sufficient. बाइबल के बारे में जो ज्ञान मेरे पास है वो काफी नहीं है। I need more, Lord. मुझे और भी ज्ञान चाहिए प्रभु। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है? Jesus says these kind of people are blessed यीशु कहता है कि ऐसे प्रकार के लोग धन्य हैं because their spirits are not क्योंकि satisfied. उनकी आत्मा जो है तृप्त नहीं है। Their spirits are poor. उनकी आत्मा दीन है Their spirits want me. और उनकी आत्मा मुझे चाहते Their हैं spirits want me. और उनकी आत्मा मुझे चाहते हैं। God is a gentleman. परमेश्वर बहुत ही सौम्य है He will never go to a place where he is not invited. और परमेश्वर वहां बिल्कुल नहीं जाएगा जिस स्थान में उसको न्योता नहीं दे, If आमंत्रित your नहीं heart करेगा। does not call to him, यदि आपका हृदय परमेश्वर को नहीं बुलाता I'm telling you, he is never going to come तो मैं inside. आपको बताता हूँ वो कभी भी अंदर नहीं A आए। lot of us live with a picture or a photo of Jesus on the wall of our heart. बहुत सारे लोग हमारे हृदय में यीशु का चित्र लगा हुआ ऐसा जीते हैं We don't have the real person. और वास्तविक व्यक्ति हमारे पास नहीं है We are just surviving with this photograph. और इस फोटो के चलते ही हम ऐसे जीवन गुजारा कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting what I'm मैं saying? जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? The real Jesus is not in us. वास्तविकता का यीशु हम में नहीं We है are just moving through life with this picture inside us. और ये केवल एक चित्र को रखते हुए हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। Why is Jesus not inside? क्यों यीशु अंदर नहीं है? Because he doesn't see a call coming out from our heart towards him. क्योंकि उसके प्रति हमारे हृदय से बुलावा एक चाहत एक बुलावा नहीं आ रहा है। The इस बात Bible को says, देखकर। call unto me and I will answer you. बाइबल बतलाते कि मुझसे पुकार और मैं तुझे The Bible says, seek and you shall find. बाइबल बतलाती कि ढूंढो तो तुम पाओगे। There is something that has to start from us. ऐसी कुछ बात है जो हम में शुरुआत हो रही है When हमसे। something starts from the inside, जब अंदरूनी स्वरूप से किसी बात की शुरुआत होती है only then God connects with us. और तभी परमेश्वर हमसे जुड़ता है। You know what is the difference between ordinary believers and extraordinary believers? क्या आपको पता है कि सर्वसाधारण विश्वासी और असाधारण विश्वासी में क्या अंतर है? This is the difference. और ये वो अंतर है। Ordinary believers are just waiting for God to come. साधारण विश्वासी केवल परमेश्वर आने का इंतजार करते हैं Extraordinary believers bring God inside. और असाधारण जो विश्वासी वो परमेश्वर का अंदर ले आते हैं। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। This sermon on the mount, और ये जो पर्वती संदेश है Bible historians say, बाइबल इतिहासकारक कहते हैं is the greatest sermon recorded in the whole Bible. पूरे बाइबल में सबसे बड़ा महान ऐसा संदेश दर्ज हुआ है। Because the depth to which Jesus has gone when he delivered this sermon. क्योंकि इस संदेश को जब यीशु ने बताया तो इस संदेश की जो गहराई में यीशु गया है They say it's profound. और वो कहते हैं कि बहुत ही अगम्य है, बहुत He ही बड़ा। speaks to the deepest parts of man's spirit. और मनुष्य की आत्मा की गहराई की बातों को वो कहता है। First, what he says is this: पहली बात जो वो कहता है वो ये है, I am God and you are man. वो कहता है कि मैं परमेश्वर और तुम मनुष्य हो I will never come to you unless there is a call from your heart for me. और जब तक तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति बुलावा नहीं है तब तक मैं नहीं आऊंगा। We need to do a reality check, my friend. और मेरे मित्रों हमें वास्तविकता की जांच पड़ताल हमें करनी We चाहिए। really need to do a reality check in our life. हमारे जीवन में वास्तविकता की एक जांच पड़ताल होनी चाहिए। Are we surviving with a picture of the Lord, or are we having the Lord in our heart? क्या हम परमेश्वर के चित्र के साथ गुजारा कर रहे हैं या वास्तविकता का परमेश्वर हमारे अंदर है? Jesus said, blessed are the poor in spirit. यीशु ने कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, People who are poor in spirit. जो आत्मा में दीन है। Lord, I need more. परमेश्वर मुझे और I चाहिए। want you to teach me more. मैं चाहता हूँ कि और भी आप मुझे Reveal सिखाएं yourself more to me. और स्वयं को मुझ पर और भी प्रकट Come कीजिए। on, when you pray your prayers every day, देखिए इस प्रकार से जब रोज आप आपकी प्रार्थना करते how much हो, of your prayer is devoted to your need and to your family, and how much of your prayer is devoted to knowing God? आपकी प्रार्थना कितना आपकी परिवार और आपकी जरूरत की ओर रहती है या कितनी आपकी प्रार्थना परमेश्वर और उसकी चाहत की ओर रहती है? If you have been in fasting in your life, यदि आपके जीवन में आप उपवास करते आ रहे हो, how many times have you been in fasting only for this reason? That Lord, I want to know you more. That's why I'm spending time in your और presence. कितनी बार आपके जीवन में केवल इसी बात के लिए आपने उपवास किया कि परमेश्वर मैं और भी आपको जानना चाहते और इसीलिए मैं उपवास
विश्वास में हूँ। That only a person poor in spirit can do. और वो केवल ऐसा ही जन जो आत्मा में दीन है, ऐसा ही जन कर सकता है। And it's to that kind of person, और ऐसे प्रकार के व्यक्ति के लिए the Bible says, बाइबल बतलाती the है kingdom of God will be given to them. परमेश्वर का राज्य उनको दिया जाएगा। What is the kingdom of God? परमेश्वर का राज्य क्या है? The kingdom of God is the existence of God. परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का अस्तित्व है। It's everything about who He is. और परमेश्वर कौन है, ये सारी बातें उसी के प्रति। You know, I know my today's message is coming from this background. देखिए मेरा संदेश आज इस पार्श्वभूमि की ओर से प्रकट हो You रहा know, है। the last week the Holy Spirit spoke to me this. पिछले सप्ताह पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें की। On the last day, many are going to be surprised. अंतिम दिनों में कई लोग आश्चर्यचकित होंगे। As Jesus Himself says, और जैसा यीशु ने सुने कहा, they will come to the Lord and say, Lord, I have done this for you. और मैंने आपके लिए ऐसा ऐसा I किया, have been there, Lord. और मैं वहां पर था I प्रभु, have achieved this. और मैंने इस बात को हासिल I किया, have done this. मैंने ऐसा किया। But the answer was so cold. लेकिन जवाब बहुत ही ठंडा सा The था, answer was so uninteresting. और जो जवाब में कोई रुचि नहीं थी। What did God say? और परमेश्वर ने क्या कहा? I don't know you. मैं तुझे नहीं जानता। I'm telling you, many of us are going to be for a rude surprise if we don't get a lot of things right in our spirit right away. मैं आपको बताऊं कि हमारी आत्मा में यदि कई बातें हम सुधारेंगे नहीं तो बहुत ही हम आश्चर्यचकित होने वाले You हैं। know, in these last days, और आप जानते हैं इस अंतिम दिनों one of में the greatest deceptions is this. और सबसे बड़ा जो धोखा है या फसावट है वो ये है। One of the greatest tricks of the devil is this. शैतान की बड़ी चालाकी सबसे बड़ी ये है, He makes you enjoy what you feel. जो आप महसूस करते हैं उसको वो लुत्फ उठाने देता है। He does not let you go into the reality of it. वो उसकी वास्तविकता में आपको जाने नहीं He देता। just lets you enjoy what you feel. जो आपको महसूस होता है, लगता है, उसमें आपको खुश कराता है। When you smell a biryani, और जब आप बिरयानी का सुगंध लेते हो, can you tell whether salt is much or less? क्या बता सकते हो कि नमक उसमें ज्यादा है या कम है? Can you tell whether chili was perfect? क्या बता सकते हो उसमें जो मसाला या जो मिर्ची है वो कम है या बराबर No, है? no, but when you smell it, लेकिन जब आप उसकी सुगंध लेते it's हो so wonderful, और इतना सुंदर you're होता so है excited और इतना उत्सुकता होती है that you're satisfied with yourself. कि आप अपने आप में तो उस बात से तृप्त हो जाते Many हैं। believers are nowadays living in this realm. और कई विश्वासी आज इसी स्तर में जी रहे We're हैं। just living in the realm of what we feel and what we experience. हम जो महसूस करते हैं, हम जो अनुभव करते हैं, उसी क्षेत्र में हम बहुत ही मगन हो रहे But हैं। when the day of our test comes, लेकिन जब हमारी परीक्षा का दिन आता है God's going to take that and He's going to taste it. और जब परमेश्वर उसको लेकर जब वो चखेगा He's going to say, no, my friend, that's too much salt. और वो कहेगा नहीं मेरे मित्र इसमें बहुत ही ज्यादा नमक No, है, my friend, this is not cooked yet. अरे नहीं मेरे मित्र ये बराबर पका नहीं है। And then you and I will go and say, और आप और मैं जाकर हम but कहेंगे Lord, I know it was perfect. लेकिन मैं जानता हूँ परमेश्वर ये तो पूर्णता से बराबर God will था। say, how did you know? परमेश्वर कहेगा तुझे कैसे क्या I will पता? say, Lord, the smell was exciting. मैं कहूँगा परमेश्वर उसकी सुगंध बहुत ही अच्छी थी। Lord, my life was good. परमेश्वर मेरा जीवन बहुत ही I अच्छा was था। going to church. मैं कलीसिया में जाया करता I was था, reading. मैं बाइबल पढ़ा I करता was था having family prayers. और मैं पारिवारिक प्रार्थना The करता था smell was good, Lord. और वो सुगंध बहुत ही अच्छी थी प्रभु। The Bible says He looks into the deepest parts of your heart. बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर आपके दिल की गहराई को देखता Come है। on, I'm telling you, don't go on the smell that your life is giving today. मैं आपको बताऊं कि आपके जीवन में जो सुगंध आ रहा है उस सुगंध की ओर आप God will बहाओ। look deep down inside. परमेश्वर बहुत ही गहराई में देखता है। Jesus' most important sermon starts like this. और यीशु का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश की शुरुआत इस प्रकार से होती है। Blessed is the man धन्य है वो who's poor in spirit, जो आत्मा में दीन है, whose spirit is always crying out to me, जिसकी आत्मा परमेश्वर के प्रति हमेशा पुकारती whose रहती है, spirit is always trying to connect with me. जिसकी आत्मा हमेशा मेरे साथ जुड़ने के लिए अपेक्षा रखती है। Some mobile phones have this function. और कुछ मोबाइल फोन में ऐसा कार्य है, When you call another person जब आप दूसरे व्यक्ति को कॉल करते and हो the call is not connected, और वो कॉल जो है जब जुड़ता नहीं you can immediately press call back. और तुरंत कॉल बैक आप प्रेस कर सकते हो। Some phones have this function कुछ फोन में ऐसा फंक्शन है where you can ask them to keep calling back until it connects. और जब तक कनेक्ट नहीं हो जाता तब तक वो फोन अपने आप जो है कॉल करता So this रहेगा। phone will keep on redialing 10 times, 15 times, 20. It'll just keep doing it till it connects. और ये फोन जो है वो रीडायलिंग करता रहेगा 10 बार, 15 बार, 30 बार, जब तक फोन जो है जुड़ नहीं जाता तब तक ये फोन जो है रीडायल करता रहेगा। This is an example of a poor spirit. और यही जो है दीन आत्मा जो है ये उसी का अनुभव है। I will not let go of you, Lord, until I connect with you फिर today. परमेश्वर जब तक आज मैं आपसे जुड़ न जाऊं मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। Until I speak with you today, I'm not going to leave this place. जब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा परमेश्वर मैं इस स्थान को छोड़कर नहीं जाने वाला। Jacob was probably the worst person in the Bible. और याकूब तो बाइबल में सबसे बदतर
व्यक्ति था। Come on, he cheated his brother first for his birthright. उसने अपने जन्म सिद्ध अधिकार के लिए अपने बड़े भाई को जो है फंसाया। Secondly, he joined with his mother and he cheated his father. और दूसरी बात, उसने अपनी माँ से मिलकर अपने पिता को उसने फंसाया। But still, the Bible calls him Israel. और फिर भी बाइबल उसे इस्राएल कहती You है। know why? आप जानते हो Because क्यों? he was poor in spirit. क्योंकि वो आत्मा में दीन The था। Bible says he wrestled with God all night. और बाइबल बता देती है कि पूरी रात भर परमेश्वर से उसने युद्ध He was किया wrestling with the angel of God. और वो परमेश्वर के दूत से उसने वो He said, लड़ा I will not leave you until you bless me. और उसने कहा जब तक तू मुझे आशीष नहीं करता मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। I'm telling you, like this kind of people are not found in the world today. और मैं आपको बताऊं कि ऐसे प्रकार के लोग आज संसार में नहीं पाए जाते। I'm speaking including myself. और मैं अपने आप को भी जोड़कर बता रहा हूं। God does not find people who wrestle with him nowadays. परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं पता जो इन दिनों में उसके साथ लड़ रहे हैं। God does not find people who are poor in spirit nowadays. परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं पा रहा जो इन दिनों में आत्मा में दीन है। I'm telling you, don't go by how our church is. मैं ये कहता हूं कि हमारी कलीसिया कैसे उसके स्तर पर ऐसे बहावे में न बहो। Don't go by how the ministry is. सेवकाई कैसे चले उस बहावे में न जाओ। Don't go by how your life looks now. आपका जीवन कैसा दिख रहा है उस बहावे में न बहो। Pastor, before coming to this church there were so many problems, but after coming to this church everything was good. I'm saying don't go by that. पास्टर जी, इस कलीसिया में आने से पहले बहुत सारा गड़बड़ी थी, लेकिन इस कलीसिया में आने के बाद सब कुछ अच्छा हो गया। इस बहावे में न बहे। Hallelujah. हालेलुया। Many others would want to capitalize on this. और बहुत सारे लोग जो है दूसरे इसी बात पर ध्यान केंद्रित करना But चाहते हैं। I want you to take your attention out of this लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारी बातों से अपना ध्यान हटा ले and just look deep down inside. और अंदर गहराई में आप देखें। Are you poor in spirit is Yeah. my question to you this morning. इस सुबह का समय मेरा प्रश्न आपकी ओर ये है कि क्या आप मन में दीन हो? Are you poor in spirit? क्या आप मन में दीन हो? Are you poor in spirit? क्या आप मन में दीन हो? It's a different level of experience with God. परमेश्वर के साथ ये अलग स्तर का अनुभव है। When you're poor in spirit. जब आपकी आत्मा में आप दीन होते हैं। You know, we're going to meditate, God willing, you know, even on the next few things that the word speaks there, but what Jesus speaks there. परमेश्वर की इच्छा हो तो और भी आने वाले वचनों के और हम अध्ययन करने वाले जो यीशु ने वहाँ पर संदेश में कहा। When your heart is poor. जब आपका हृदय, आपका मन दीन होता When है। it says, when I use the word poor, और जब मैं दीन ये शब्द I'm using the word hungry. तो मैं भूखा ऐसा शब्द I'm using the word unquenchable thirst. और जो है न मिटने वाली प्यास, इसको मैं कह रहा हूँ। I'm using the word undying passion. और न मिटने वाली ऐसी तड़प या जुनून, ऐसा मैं कह रहा हूँ। I'm using the word never-ending cry to the Lord. और न मिटने वाली पुकार, प्रभु की ओर की पुकार, ऐसा मैं कह रहा Coming हूँ। from the bottom of your heart. आपके हृदय की गहराई से ये बातें जब निकली, Inviting him inside. और अंदर उसको अंदर जो है आमंत्रित करते हैं। Jesus says, और यीशु तब कहता है, the kingdom of God is given to them. परमेश्वर का राज इन्हीं लोगों को दिया The जाता kingdom है। of God is given to them. परमेश्वर का राज उन्हीं लोगों को दिया जाता है। I was very privileged in my life to know a man like this. मेरे जीवन में मैं बहुत ही धन्य रहा कि ऐसे जनों को मैं मिला। You know, in the days of my college, मेरे कॉलेज के दिनों में this great man of God, Dr. Dinakaran, DJs Dinakaran, प्रभु के महान दास डॉक्टर डीजे दिनकरन I जी, got to spend 4 years with him. 4 साल उनके साथ बिताने का मुझे मौका He मिला। has read the Bible more than 100 times. 100 बार से भी ज्यादा उन्होंने बाइबल पढ़ी है। But even then, whenever he read the Bible, लेकिन फिर भी उसके बाद भी यदि जब कभी वो बाइबल पढ़ते, tears used to flow from his eyes उनकी आंखों से आंसू बहते थे, because he was poor in spirit. क्योंकि आत्मा में वे दीन थे। He wanted more from the Lord. वो परमेश्वर से और भी चाहते थे। Hallelujah. Hallelujah. So many of us are happy with what little we do. हम में से बहुत सारे जन जो भी कुछ थोड़ा हम करते हैं उसमें बहुत खुश हो जाते You हैं। know why you are satisfied just with one Sunday morning service? आप जानते हो आप एक रविवार की सभा से क्यों तृप्त हो जाते हो? Because there's no purity in your spirit. क्योंकि आपकी आत्मा में दीनता नहीं है, या You feel that this is okay और enough for me. आपको लगता है कि ये पूरे सप्ताह भर के लिए ठीक This is है, enough for me. अरे मेरे लिए इतना तो बस है। There's no urge for more. और भी ज्यादा के लिए कोई आपके अंदर वो तड़प नहीं है। I'm telling you, when you are poor in spirit, मैं आपको बताऊं, जब आपकी आत्मा में आप दीन होते you हो will behave like a madman. तो आप पागल आदमी के जैसे बर्ताव You करोगे। will behave like a crazy man. आप जो है पागल व्यक्ति के जैसे बर्ताव How many करोगे। of you carry your Bible to the toilet? आप में से कितने जन टॉयलेट में बाइबल लिए चलते हैं? Hallelujah. Oh, pastor, that's a very unholy thing to पास्टर, do. ये वो तो बहुत ही मतलब Unholy thing to do. और जो बहुत ही मतलब बेकार बात है या करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। I'm telling you one thing. लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता When your soul is continuously redialing, हूँ, जब आपका प्राण हमेशा रिडायलिंग करता ही your रहता है, soul is just trying to connect with God anytime and every time, जब आपका प्राण हमेशा और हर बार परमेश्वर से जुड़ने के प्रयत्न में रहता है, I'm telling you,
take your Bible even to the toilet. मैं आपको बताऊं कि टॉयलेट में भी आप आपकी बाइबल को ले चलो, Because anywhere and everywhere you just want to connect with God. क्योंकि हर बार और हर स्थान में आप परमेश्वर के साथ जुड़ने का Anywhere or everywhere you're just expecting God to show up and touch you and speak to you. किसी भी स्थान में और किसी भी समय में आज आप अपेक्षा रखोगे कि प्रभु आपको छुएगा, आपसे बात करेगा। Jesus says, "Blessed are the poor in spirit." यीशु ने कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं। I'm giving my entire property to them. मैं अपनी पूरी धन संपत्ति उन्हें दे रहा हूँ। Hallelujah. Hallelujah. He was giving his entire kingdom to the man who was poor in spirit. अपना सारा राज्य परमेश्वर उस व्यक्ति को जो अपनी आत्मा में दीन है उसे दे रहा हूँ। Because God knows something about that person. क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति के बारे में कुछ जानता है। This man is hungry for me. ये व्यक्ति मेरे लिए भूखा है। This man is passionate for me. ये व्यक्ति मेरे लिए तड़प उठ रहा है। Nothing matters to him more than me. मुझसे भी बड़ी बात उसके लिए कुछ भी I नहीं am है। telling you, it is such kind of people that become the Dinagans and the Benians. और मैं आपको बताऊं कि ऐसे प्रकार के लोग ही दिनकरन और बेनियन बनते They हैं। are flesh like you and me. वे आप और मेरे जैसे हाड़ मांस के They हैं। are human like you and me. वे आप और मेरे जैसे ही वे मनुष्य ही But हैं। what made them who they are? लेकिन वे जो अब है वो कौन सी बात ने उनको ऐसा बना दिया? Poorness of spirit. और आत्मा में जो दीनता उसकी। Lord, I want more of you. वे परमेश्वर मुझे और भी आप Lord, I चाहिए। want more of you. परमेश्वर मुझे और भी आप चाहिए। A lot of people struggle to read one Bible that they have. बहुत सारे लोग एक बाइबल जो उनके पास है उनको पढ़ने में बहुत ही संघर्ष होता I है। have seen people studying the Bible with 5 Bibles open in front of them. और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 5 बाइबल उनके सामने खुली होती है और वो पढ़ते हैं। They're hungry for the Word of God. परमेश्वर के वचन के प्रति वे भूखे They're होते हैं। going through Bible commentaries. और बाइबल कमेंट्री को वो पढ़ते They're going हैं। through different versions. अलग वर्जन अलग जो अनुवाद की बात They're trying to get all the wisdom that they can. और सारा ज्ञान जो प्रभु के प्रति है वो जान पाने का प्रयत्न वे करते हैं। I'm telling you, God reveals secrets to them. मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर अपना रहस्य उन लोगों पर प्रकट करता है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Come on, is there anyone poor in spirit this morning? क्या इस सुबह का समय यहाँ पर कोई है जो आत्मा में दीन है? If you are not, then I want to put that seed of hunger inside of you right यदि now. आप नहीं है तो इस समय उस भूख क्या वो बीज में आपके अंदर डालना You चाहता know, हूं। a lot of Christians these days, you know, this is a picture the Lord showed me this morning. और इस सुबह का समय एक चित्र परमेश्वर ने मुझे The दिखाया। Holy Spirit said this. पवित्र आत्मा ने ये बात मुझसे A कही। lot of believers these days are spiritually obese. Obese, yes. और बहुत सारे आत्मा जो विश्वासी आत्मिक मोटापे में बन गए हैं। You know, being obese is that state where you become totally useless. और मोटापा जो है ऐसा स्तर है जहाँ पर आप पूर्णता से बेकार बन You जाते हैं। cannot get up from where you're sitting. आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ से उठ नहीं You सकते। just stay there and eat. आप वहीं पर बैठे रहते हो, वहीं पर खाते You हो just stay there and eat. और वहाँ पर बैठे रहते हैं और खाते रहते हो। Churches have become filled with people like that, I'm telling you. कलीसिया ऐसे लोगों से भरी हुई कलीसिया बन गई है। God is speaking and this is eating the word. और परमेश्वर कहता है कि ये खाली वचनों को खाते रहता They है just come, receive and eat. और वे खाली आते हैं, प्राप्त करते खाते But रहते there is हैं, no spiritual activity. लेकिन आत्मिक कार्य उनमें नहीं, There is no spiritual movement. आत्मिक जो है क्रियाशीलता नहीं They है are not trying anything different for God. और परमेश्वर के प्रति किसी और तरीके से वे प्रयत्न नहीं They कर are रहे, not fighting spiritual wars. वे आत्मिक युद्धों को नहीं लड़ रहे They हैं, are not breaking spiritual bondages. आत्मिक बंधनों को वे नहीं तोड़ रहे They are हैं, sitting in the house of God and eating. वे बस परमेश्वर के घर में बैठकर खाते जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। And I'm telling you, one day it is the word of God that will fill them so much that they will die because of that. और मैं आपको बताऊं कि एक दिन ऐसा होगा कि परमेश्वर का वचन इतना वो भर जाएगा कि उसके वजह से वहीं पर वे मर जाएंगे। God is looking for people hungry in spirit. परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है जो आत्मा में दीन है, People passionate about Him. ऐसे लोग जो परमेश्वर के लिए बहुत ही तड़प उठ रहे You हैं। know, this Saturday, coming Saturday, और ये आने वाला जो शनिचर है, I'm going to meet about 30 to 35 people from Mumbai, और 30 से 35 लोगों मुंबई से मैं ऐसे लोगों को मिलने from वाला हूं different churches, और youths. अलग-अलग कलीसियाओं के युवाओं And को, then they invited me about 3 weeks ago. और 3 सप्ताह के पहले उन्होंने मुझे And they आमंत्रित said, किया Pastor, we want you to come and share with us. और उन्होंने कहा कि पास्टर जी हम चाहते हैं कि आप आकर हम हमारे साथ प्रभु And का it is बात- only on Saturday morning that I'm coming back from Sri Lanka. केवल शनिचर की सुबह ही मैं श्रीलंका से लौटूंगा And I was having no plans for that day. और उस दिन के लिए कोई भी योजना नहीं थी। So when these people asked me, और इसलिए जब इन लोगों ने मुझसे I पूछा asked them, bro, what is it about? और मैंने कहा भाई ये क्या विषय You है, know, if I can excuse myself, I would really like to take rest. और यदि मैं इस बात से छूटूं तो मैं आराम लेना चाहूंगा। But then this is what he said. तो अब उस व्यक्ति ने इस प्रकार से He said, कहा, Pastor, we are not many. और पास्टर जी हम ज्यादा लोग नहीं We're हैं just going to संख्या, be few people. हम कुछ ही लोग होने वाले हैं, But we are on fire for the Lord. लेकिन प्रभु के लिए बहुत ही आग से भरे We हैं, are hungry for Him. हम परमेश्वर के लिए बहुत ही भूखे हैं। Please come and share with us. कृपा करके आकर प्रभु का वचन हमें बताएं। I'm telling you, God is looking for people
people like this. और मैं बताऊं कि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा And है। these people I'm talking to you are not 50-60-year-olds. और ये लोग जो मैं आपको बताऊं ये इनकी उम्र 50-60 उम्र के नहीं They are 21, 25, 28 और वे year-olds. 20, 21, 25 वर्ष के हैं। I'm telling you, God is raising a different generation in these days. मैं आपको बताऊं कि इन दिनों में परमेश्वर अलग पीढ़ी को खड़ा कर रहा If है। we as the existing generation don't recognize the move of the Spirit of God, और यदि हम जो अभी अस्तित्व में जो पीढ़ी है परमेश्वर के जो कार्यों को अगर हम पहचानेंगे नहीं, we're just going to miss that wave of God. तो परमेश्वर के उस बहाव को हम चूकने वाले There हैं। is a next generation that's coming that is at a different level, I'm telling you. अगली पीढ़ी जो आ रही है बहुत ही अलग ही स्तर पर वह है, मैं आपको बताता I हूं। have met 20-year-olds, 22-year-olds whose lives have made me feel afraid. और ऐसे लोगों से भी मिला हूं जिनकी उम्र 20 साल की है, 22 साल की, उनके जीवन को देखकर मैं खुद घबरा गया। I've seen young people who are so crazy after God. और ऐसे युवाओं को मैंने देखा है जो पागल परमेश्वर के प्रति बहुत ही पागलपन से भरे I'm हुए हैं। telling you, there is a shift coming in this world. और मैं आपको बताऊं कि संसार में एक बदलावट आ रही है। God is asking us today, और परमेश्वर आज हमसे पूछता है, are you poor in spirit? क्या तुम आत्मा में दीन हो? Do you want more of me every day? क्या और भी हर प्रतिदिन और भी तुम मुझे चाहते हो, मांगते Is हो? the cry of your heart that Lord, I want you? क्या तुम्हारे दिल की पुकार ऐसी कि प्रभु मुझे और भी आप चाहिए? Salvation is a starting experience. उद्धार तो ये एक शुरुआती अनुभव You know, है। it's just like how you put your key into your car and you just started. जिस प्रकार से आपने चाबी आपकी गाड़ी में डाली और आपने चालू If कर you're just दिया। going to stay in that experience, यदि उसी अनुभव में आप बने रहोगे you're going to be there in that same place spiritually. तो आत्मिक स्वरूप से आप उसी स्थान में हमेशा वो वहीं पर बने From रहोगे। there, you got to start moving forward. लेकिन वहां से आपको आगे की ओर बढ़ना Got to होगा। have this desire that says, Lord, I want more. आपको ये अपेक्षा चाहत होनी चाहिए कि प्रभु और भी मुझे I've चाहना है। spoken to you about spiritual ambitions. मैंने आपको आत्मिक अभिलाषा के बारे में बोला। I don't know if you remember spiritual ambitions. I've spoken on आत्मिक this. अभिलाषा के बारे में मैंने आपको बताया। Everyone should have a spiritual ambition. हर एक जन को आत्मिक लालसा, आत्मिक अभिलाषा होनी चाहिए। Spiritual ambition is not I will read the Bible one time in 1 year. आत्मिक लालसा इसको नहीं कहते कि एक साल में एक पूरा बाइबल पढ़ लो। That is not spiritual ambition. इसको आत्मिक लालसा नहीं कहते। Spiritual ambition is how much you want to receive from God. आत्मिक लालसा उसके कहते हैं कि परमेश्वर से आपको आप कितना प्राप्त करना चाहते हो। Lord, this is my desire. कि परमेश्वर ये मेरी चाहत है This is my passion. और ये मेरी तड़प, ये मेरा जुनून This is है my passion. और ये मेरा जुनून है This is my passion. और ये मेरी तड़प है। This is what I want from you, और Lord. परमेश्वर मुझे ये आपसे चाहिए Have a spiritual ambition. और आत्मिक लालसा बनाए रखें। Have a spiritual ambition. जब आत्मिक लालसा आप में रहे That will be a spiritual passion. तो आत्मिक तड़प और जुनून भी रहेगा। I was in college. मैं कॉलेज में था In the first year of college, और कॉलेज के पहले वर्ष I में attended this Jesus Calls Institute of Power Ministry. और पावर मिनिस्ट्री का जीसस कॉल्स इंस्टीट्यूट मैंने वहां पर We were there for किया about 15 days in the presence of God. और प्रभु की उपस्थिति में 15 दिन हम वहां पर थे And in those 15 days, I got hold of a passion. और उन 15 दिनों में वो एक तड़प, एक जुनून को मैंने धर लिया। I would have been maybe 20, 21 years old that time. हो सकता है उस समय में हो सकता है कि मैं 20 या 21 उम्र का होऊंगा। I said, Lord, मैंने कहा है प्रभु that if I have a relationship with you, यदि मेरा आपके साथ नाता और रिश्ता है it has to be beyond emotional. तो भावना से भी बढ़कर वो आगे रहना, It needs to be physical. तो भौतिक ऐसा एक रिश्ता रहना I है। need to be able to touch you and feel you in my life. मेरे जीवन में आपको छूकर मैं महसूस करना I चाहिए need to प्रभु। be able to see you. मैं आपको देखना चाहिए प्रभु। Young boy, I did not know where the Lord is going to take मैं me. बहुत ही युवा था, मैं नहीं जानता था कि प्रभु मुझे कहाँ पर क्या ले I had all plans for life. और जीवन के प्रति मेरी अपनी योजनाएं थी It was in the last day of that meeting. और उस सभा के अंतिम दिन थे And it is at that time, और उस समय में this man of God, he prays for me. और ये प्रभु के दास ने मुझसे वहाँ प्रार्थना Dr. की। D.J. Dinakar. डॉक्टर जीजीएस दिनकर He जी ने whispers this into my ear. उन्होंने इस बात को मेरे कान में फुसफुसाया। God knows your ambition. परमेश्वर तेरी लालसाओं को जानता And है at the right time, it will come to pass. और सही समय पर वो सारी लालसा पूरी होगी। It's been about 14, 13 years now. और अब इस बात को होते हुए 13-14 साल बीते And हैं I'll tell you how many times this ambition has been fulfilled. और मैं आपको बताऊं कि कितनी बार ये लालसा पूरी हुई है। Every time it has been fulfilled, हर बार जब ये लालसा पूरी होती I है have placed another higher ambition. और मैंने और भी ऊंची लालसा को प्रभु के सामने And रखा that is what drives me spiritually. और यही बात मुझे आत्मिक स्वरूप से मुझे खींच लेती This है is आगे what बढ़ाती है। helps me to get up in the middle of the night and seek His face. और ये बात मुझे मदद करती है मध्यरात्रि के समय जाग उठकर प्रभु के चेहरे की ओर मैं You खोजता know, हूं। my example can be the worst example for you. और मेरा उदाहरण आपके लिए बहुत ही बदतर हो सकता But है I want to give mine because I know it's true. लेकिन मेरा उदाहरण इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये सच है, मैं ये जानता हूँ। Getting through life with God is very difficult. परमेश्वर के साथ जीवन में प्रभु